Hello everyone. The topic for today's session is In the Kingdom of Fools. It's a chapter from book Movement of Class 9 Standard. So let's begin the chapter, what it actually contains. It is believed that fools are so dangerous that only wise, very wise people can manage them. पागल लोग कुछ ऐसे होते हैं, इतने खतरनाक हो सकते हैं कि सिर्फ एक समझदार इंसान, एक सॉल्व, एकदम इंटेलिजेंट या फिर अंडरस्टूड which has a which has an experience of life, like he can tackle with such idiots or fools. तो सिर्फ वही लोग उन्हें हैंडल कर सकते हैं. Who are the fools in the story? What happens to them? So we will study कि इस कहानी में कौन लोग पागल हैं and उनके साथ क्या क्या हो रहा है इस स्टोरी में. So let's start with the very first paragraph. In the kingdom of fools, both the kings and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings. So they decided to change day and into night and night into day. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. So there are king. There's a king in kingdom of fools. उसका ये मानना है कि रात को दिन कर देते हैं एंड दिन को रात कर देते हैं. जो काम हम दिन में करते थे, लाइक जो कमाने के लिए, लाइक अपना बिजनेस हो या फिर एनी प्रोफेशन ए पर्सन इज डूइंग टू अटेन हिज लाइफ, टू अर्न हिज लिविंग, वो सारे काम अब रात में किए जाएंगे. तो वो दोनों पागल ही थे. लाइक जो राजा था वो पागल था एंड द मिनिस्टर जो उसका सेनापति था, जो उसके अंडर काम करता था, ही इज ऑल्सो लाइक अ फूल बिकॉज ही डोंट इवन नो कि करना क्या है. उन्होंने चीज़ों को बिल्कुल उल्टा कर दिया. दिन को रात, रात को दिन. जो काम रात को हो रहे हैं वो दिन में होंगे, जो दिन में काम हो रहे हैं वो रात को होंगे. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. जो भी इसका उल्लंघन करता है, जो इस बात को नहीं मानता है, will be punished with death. उसको सजाए मौत दे दी जाएगी. The people did as they were told for the fear of death. सबने वही किया क्योंकि सबके अंदर मौत का एक डर था कि किंग हमें मार देगा, पागल है, तो करना पड़ेगा. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. तो king और minister उसके बहुत खुश थे कि यार जैसा जैसा चाह रहे हैं वैसा वैसा हो रहा है. The people are following us blindly. तो वही हो रहा था. So one day what happened? एक गुरु और एक शिष्य आते हैं. गुरु and his disciple. Disciple मतलब उनका शिष्य. Arrived in the city. उसी शहर में आते हैं जहाँ पर वो राजा हैं. The kingdom of fools. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. So जैसे उन दोनों ने, गुरु और शिष्य ने शहर एंटर किया, what they found that everything is so silent. वो किंगडम, वो शहर इतना खूबसूरत है मगर यहाँ पर कोई जग नहीं रहा. एवरीवन वाज स्लीपिंग. लाइक वहाँ जानवरों को भी अब आदत हो गई थी कि दे डोंट इवन वेक अप इन मॉर्निंग और इन आफ्टरनून. दे आर स्लीप, दे आर वेकिंग एट द इवनिंग एंड वर्किंग इन नाइट. तो ये बिल्कुल उल्टा कर दिया था, ना सिर्फ इंसानों के लिए बट जानवरों के लिए भी सेम हो गया था. सो दे एक्चुअली roamed around everywhere, but they did not find a single person in the city in the afternoon period. तो उन्होंने कहा यार दिन में तो कोई भी नहीं दिख रहा है, नो वन इज देयर. बट जैसे ही शाम शुरू हुई उन्होंने देखा कि धीरे धीरे लोगों ने उठना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे अपने जो काम पे वो चल दिए जाएंगे. बिकॉज जो वो अपनी लिविंग के लिए, whatever they were doing to earn their living, they used to do during night, what has been ordered by the king. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some grocery. उन दोनों को पूरा दिन हो चुका था, टहलते टहलते कोई दिख नहीं रहा था, सब कुछ बंद था. तो फाइनली they found in the evening that there is a shop. तो आके कुछ खा लेते हैं. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single to do. तो उनको क्या, जब उन्होंने खरीदना शुरू किया तो उनको एक अनोखी चीज़ पता चली कि यहाँ पर कुछ भी खरीद लो, सोना चांदी, खाना पीना, कुछ भी, एनीथिंग ऑफ योर नीड, ऑफ डेली नीड्स, वो सब कुछ सिंगल टू डू. मतलब एक सोने से लेके एक ग्रेन, एक वीट के ग्रेन की दोनों की कीमत सेम ही थी.
if like gold costs 1 to do, wheat also costs 1 to do. So there was no difference between the cost of both the things. So everything was very cheap and was of single to do. They never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ देखा नहीं था. वो कभी भी लाइक कुछ भी खरीद सकते थे सिर्फ सिंगल टू डू से. तो दे वर वेरी हैप्पी कि यार यहाँ तो सब कुछ वेरी चीप है, बहुत आसान है यहाँ पे जीना, क्योंकि इतना सस्ता है कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं सिर्फ 1 रुपया. मतलब अगर हम बात करें, हम 1 रुपया दे के कुछ भी खरीद सकते हैं. इन आर लैंग्वेज लाइक सिंगल डू इज 1 to do, so we have 1 rupee. Okay. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this kingdom was a kingdom of fools and it wouldn't be good idea for them to stay here. There is no place for us, let's go, he said to the disciple. तो उनको लगा जब वो खाना बना रहे थे और खा रहे थे कि ये जगह हमारे लायक नहीं है, ये जगह पागलों का शहर है, यहाँ हम नहीं रुक सकते. It wouldn't be a good idea to stay down here because कुछ भी हो सकता है. तो उन्होंने अपने चेले को, अपने शिष्य को बोला कि यहाँ से चलते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू लिव इन. बट द डिसिप्लिन डिडंट वांट टू लीव द प्लेस. मगर उनका जो चेला था, उनका शिष्य था, उसे जगह बड़ी बढ़िया लग रही थी क्योंकि उसे बड़ा सस्ता मिल रहा था सब कुछ. तो उसका बिल्कुल मन नहीं था कि नहीं जाना चाहिए. एवरीथिंग वॉज चीप हियर, सब कुछ चीप था. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. द गुरु सेड they are all fools. This won't last very long and you can't tell what they'll do to you next. मतलब उन्होंने बोला कि देखो ये पागलों की जगह है, अभी तुमको अच्छा लग रहा है मगर इनका कोई भरोसा नहीं है कि अगर इनका अगला स्टेप क्या हो सकता है, ये क्या करे. और आई डोंट थिंक ये पागल लोग ज़्यादा दिन टिकेंगे भी, बिकॉज पागलों को कोई भरोसा नहीं है. कल हैं, आज हैं या कल हैं, कोई भरोसा नहीं था. तो ही वॉज एक्सप्लेनिंग दैट टू हिज डिसिपल कि दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, यू वॉन्ट टू स्टे डाउन. बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम. मगर वो जो उनका ज्ञान था गुरु का, वो उनकी मानने को तैयार नहीं था. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, do you want, do what you want, I'm going, and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghees and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. धीरे धीरे क्या हुआ, वो रुक गया शिष्य, और गुरु जी चले गए. एंड फाइनली उनको बहुत सस्ता था, मतलब शिष्य के लिए सब कुछ सस्ता था शहर में. तो स्टार्टेड ईटिंग डे बाय लाइक everything was so cheap कि उसने ये खरीद वो खा. he was eating a lot, he was eating this much कि वो एक बुल की तरह हो गया था, एक ऑक्स की तरह. लाइक सड़क पे चले जो सांड होता है ना, बिल्कुल हैवी खाते पीते, तो वो बिल्कुल उसी शेप में आ गया. One bright day a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. तो एक दिन एक चोर आता है एक अमीर मर्चेंट के यहाँ, वो wall के through sneaked in, like he get entered inside the house to steal something. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. तो जैसे ही वो अपनी चोरी जारी रख रहा था, मतलब चोरी कर रहा था, तो क्या होता है कि जो उनका साइड में जो वॉल थी वो चोर पर गिर जाती है. His brother ran to the king and complained. उसका भाई ये देखता है कि मेरा भाई मर चुका है, और तो वो भागकर राजा के दरबार में जाता है और उनको इन्फॉर्म करता है, योर हाइनेस, when my mother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. तो वो वहाँ पर जाकर गुहार लगाता है कि देखिए जब हम अपना खानदानी बिजनेस चला रहे थे, लाइक उनका चोरी खानदानी बिजनेस था, तो वो जो ये काम चला रहे थे, तो एक दीवार मेरे भाई पर गिर गई और वो मर गया. अब मुझे इसका इंसाफ चाहिए. पहली चीज़ तो उसको सज़ा दो जिसने ये गलत काम किया है, और दूसरी हमें जुर्माना दीजिए, कंपनसेट कीजिए, मतलब जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो हमको भरपाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये जस्टिस हो पाएगा. द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस. राजा ने सुना और तुरंत ही एक्शन लिया कि ठीक है, इस घर के मालिक को बुलाया जाए. When the merchant arrived, the king questioned him, what's your name? Such and such, your highness. Merchant से king उसका नाम पूछते, तो वो बताता है this and that, whatever. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. क्या वो तुम्हारे घर पे था? चोरी मतलब he was the dead man जब क्या मेरे घर पे ही था, और एक कमज़ोर दीवार थी जो उस पर गिर गई और वो मर गया.
यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू, तुमने एक आदमी मारा और हम आपको सजा देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, कहता सर वो दीवार मेरी लगाई हुई नहीं थी, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। तो वो कहता है सर ये मेरी दीवार, ये जो दीवार है जो मेरी बनाई हुई नहीं है, एक्चुअली ये जिसने बनाई है उसको आपको सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, वो कौन है? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man, he's an old man now, he lives nearby. कहता सर वो मेरे पिताजी के ज़माने की दीवार है, हाँ मगर वो इंसान अब भी जिंदा है, थोड़ा बूढ़ा हो गया है, बट वो मेरे घर के पास ही रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. Did you build this man's wall in his father's time? Yes my lord, I did. तो वो जो बूढ़े आदमी से पूछताछ होती है कि आज टाइम के तुमने ये दीवार बनाई, तो कहता है जी हाँ सर मैंने ही बनाई है। What kind of wall is that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. You have to punish you by that. बोला ये कैसी दीवार बनाई तुमने, एक गरीब आदमी पे गिर गई, वो मर गया, अब हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give the orders. It's true, I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. तो उसने बोला सर हाँ चलो मेरी मानना मैंने गलती की है, मगर से ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती एक्चुअली उस लड़की की है जो डांस, जिसको बोल रहा है वो डांस सिंगर है जो नाचती, बिकॉज शी इज़ वियरिंग अ एंकलेट, वो एक झांझर पहनी हुई है जो बज रही है। जिंगलिंग इज लाइक जो झांझर की आवाज़ होती है, लाइक छन 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 ऊपर नीचे। तो ही वॉज गेटिंग डिस्टर्ब बाय दिस वॉइस, जो साउंड आ रहा था ना उसके पैरों से, उसकी एंकलेट से। तो द पर्सन, द बिल्डर वॉज गेटिंग, जो दीवार बना रहा था वो इंसान उससे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। अब इतना डिस्टर्ब हो गया तो वो ढंग से काम नहीं कर पाया, और वो जब ढंग से काम नहीं कर पाया तो व्हाट हैपेंड, वो दीवार बेकार बनी और वो दीवार उस इंसान पे गिर गई। यू आर राइट, द केस डीपेंस, अब ये केस जो है गहरा होता जा रहा है। तब राजा जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम तो, वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट द आंसर वेर एवर शी इज। इतनी जल्दी और मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। अब ये जो केस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, मगर हम उस लड़की को बुला के इसका सॉल्यूशन करेंगे। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो जो डांसिंग गर्ल है वो भी अब बूढ़ी हो चुकी है, लाइक इट्स बीन लॉन्ग टाइम, वो दीवार बने हुए। तो वो जो लड़की थी हु वाज अ डांसिंग गर्ल वो भी अब बूढ़ी है, और वो ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, मतलब लड़खड़ाते हुए ही, हिलते जुलते जो नॉर्मल चाल होती है बूढ़े लोगों की, वेरी स्लो एंड लाइक ट्रेम्बलिंग वॉक। तो शी entered the courtroom. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord. I remembered it very well. So you did walk up and down with your ankles jingling. तो उसने कहता क्या तुमको याद है तुम पूरे दिन ऊपर नीचे इधर उधर टहल रही थी जब ये इंसान दीवार बना रहा था और तुमने इसको डिस्टर्ब किया? तो वो कहती यस सर मुझे याद है। You were young and you distracted him, so he built a bad wall. आप यंग थे and you distracted, आपने उनका ध्यान भटकाया और उस इंसान ने गलत दीवार, कच्ची दीवार बना दी। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You'll have to be punished. कह रहा तुम्हारी वजह से ये दीवार एक गरीब इंसान पर गिर गई है, तुम कसूरवार हो और तुमको सजा मिलेगी। She thought for a minute and said, My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said said he would give it now and he would give it then and so on all day. तो उसने बोला कि सर ये गलती मेरी भी नहीं है, मैंने गोल्डस्मिथ को, मतलब गोल्डस्मिथ इज अ पर्सन हु डील्स विद द वर्क ऑफ गोल्ड, जो सोने का काम करते हैं, लाइक गलाना बनाना, न्यू ज्वेलरीज बनाना। सो ही डील्स विद, ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस। तो ना मैंने उनको ऑर्डर दिया था, ही वॉज सो लेजी, वो इतना आलसी था कि पूरे दिन अभी कल थोड़ी देर बाद ये सब करता रहा। ड्यू टू हिज प्रॉब्लम मुझे पूरे दिन भाग दौड़ करनी पड़ी, जिसकी वजह से ये बंदा
डिस्टर्ब हुआ. That was when his bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith fault. तो कहता सर ये मेरी गलती नहीं है, ये उस गोल्ड स्मिथ, उस सोने के जो कारीगर है उसकी गलती है, क्योंकि मैं तो कभी नहीं टहलती या फिर भाग लगाती अगर वो मुझे परेशान नहीं करता. Poor thing. She's absolutely right, thought the king. Weighing the evidence, we have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. तो बोले कि ठीक है, एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो. अब हमें फाइनल कल्प्रिट मिल गया, हमें फाइनल कसूरवार मिल गया जो जिसकी ये गलती एग्जैक्टली है, उसे बुला के लाओ. The king's valet searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. तो फाइनली उसके जो किंग के लिए जो काम करते हैं, लाइक सेना बोल सकते हो, लाइक वर्कर्स बोल सकते हो, they actually found that person and he was hiding in a corner. वो कहीं कोने में छुपा हुआ था, तो उसे लेकर आते हैं. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब उस पर ये इल्ज़ाम लगाए गए तो उसने भी एक अपनी कहानी सुनाई. उसका एक्सक्यूज़ क्या था? My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how much impatient rich men are. तो कहा सर ये मेरी गलती नहीं है, मैं एक्चुअली इन्हीं की ज्वेलरी बना रहा था, मगर उसी दिन एक अमीर इंसान, एक रिच मर्चेंट के घर में शादी थी. अब उनका ऑर्डर था एंड मुझे पूरा करना पड़ा, क्योंकि आप जानते हो कितने इम्पेशेंट होते हैं. लाइक कि अमीर लोगों पे सब्र नहीं होता, वो पैसे फूकने के लिए तैयार होते हैं मगर उन्हें काम चाहिए होता है. लाइक तुम 10 नहीं 20 लो मगर मुझे आधे घंटे में दो. सो व्हाट हैपेंड, उसको मजबूरन ये काम करना पड़ा. और लड़की जो थी डांसिंग गर्ल, उसे भागा दौड़ी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि गोल्ड स्मिथ पे एक प्रेशर था कि उसको किसी और की ज्वेलरी कंप्लीट करके देनी है, जो कि एक रिच मर्चेंट था, बहुत अमीर आदमी था एंड वो उसकी बात नहीं टाल सकता. Who is this rich merchant who kept you from finishing the poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? ऐसा कौन इंसान है जिसने इतना तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुमने लड़की को मजबूर कर दिया, और लड़की की वजह से उस इंसान ने दीवार गलत बना दी, और वो दीवार इतनी बेकार थी कि उस इंसान पे गिर गई, गरीब इंसान पर, और गरीब इंसान मर गया. कैन यू नेम हिम? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. So what happened now? Actually, जो मर्चेंट जिसके लिए वो काम कर रहा था, वो वही मर्चेंट है जिसकी दीवार गिरी है, और जो सबसे पहला कल्प्रिट था, जिसका जो इंसान मरा था, उसका भाई जिसको लेके आया था, ही वॉज द सेम पर्सन, ही वॉज द सेम मर्चेंट. तो कहानी घूमकर उसके पास आ गई. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल. मतलब घूम फिर के वही कहानी आई है. Thought the king. Back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He's dead. I'm innocent." तो कहता सर ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे पिताजी की गलती है, मैंने उस दिन ज्वेलरी ऑर्डर नहीं की थी. It was my father who ordered the jewelry and called. तो वो बोला कि मेरी तो गलती है नहीं ना, ये तो मेरी पिताजी की गलती है, क्योंकि उनका ऑर्डर था. मैं तो बेकसूर हूँ. आई एम इनोसेंट. But the king consulted his minister and ruled decisively. It's true, your father is that true murderer. He's dead, but somebody must be punished in the place. You have inherited everything from that criminal father of yours. His riches as well as his sins. तो वो कहता है देखो गलती हुई है, सजा किसी को देनी पड़ेगी. अब वो तुम नहीं हो, तुम्हारे फादर हैं, मगर हम फादर की जगह तुमको ही देखो, क्योंकि तुमने सब कुछ अपने फादर से इनहेरिट किया है, ये जायदाद, ये पैसा, उनका पाप, उनका पुण्य तक. लाइक हिज सिंस ऑल्सो, उन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो भी तुम पे आएंगी. आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम. यू मस्ट डाई. कि तुमको देखते ही मेरे को खबर हो गया था कि तुम ही ये जो गुनाह हुआ है, वट एवर द सिन हुई है, जो इंसान मरा, ये जो गलती हुई है, इसके तुम ही कसूरवार थे. मुझे शुरुआत में ही पता चल गया था जब मैंने तुमको देखा. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. तो उसको काटने के लिए, मतलब उसको मारने के लिए स्टेक तैयार किया गया. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake.
He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. सो एक्चुअली वर्ड हैपेंड थी कि जो इंसान था वो इतना हल्का था कि उसे टांग नहीं सकते थे। लाइक अगर हम फांसी दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसका वजन इतना हल्का था कि वो हवा में झूलता रहता, उसको हम मार नहीं सकते थे। तो राजा चिंता में आ गया कि हमने सज़ा देनी है, इसको मारना भी है, इसके लिए फांसी का फंदा ही बना देंगे, मगर ये लटका रहेगा तो ये मरेगा कैसे। तो दैट वाज अगेन अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ देम, व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए। ही सेड, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months of bananas and rice and wheat and ghee. अब यहाँ पे देखिए समझदारी राजा की। राजा कहता है कोई बात नहीं, ऐसा इंसान नहीं है ना, ये पतला है, इसको नहीं मार सकते ना, ठीक है, तुम शहर में जाओ, कोई मोटा आदमी ढूंढ के लाओ, हम उसे टांगेंगे। मतलब देयर वाज नो सेंस इन द थिंग कि मतलब ये कोई सेंस, दिस वाज कम्प्लीटली सेंसलेस नॉनसेंस कि आप उस मतलब जिसने गलती की उसे नहीं मार रहे हो, उस फांसी के फंदे पे के सूटेबल इंसान को ढूंढ रहे हैं आप बाजार में जाके कि उसे मार देते हैं। एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंड, द ट्विस्ट इज व्हाट कि वो ढूंढने निकले, उसके सैनिक निकले जब ढूंढने, तो उन्हें वही इंसान दिखता है जो गुरु का डिसिपल था, जो यहाँ पर ज़बरदस्ती रहने का मन था कि यहाँ पर सब कुछ बड़ा सस्ता है सर, मैं तो यहीं रहूँगा, यहाँ खाने को भी मिलता है सब कुछ एट वेरी ईज, आई कैन गेट एवरीथिंग इन ईजिली। तो वो बड़ा खुश था, मगर उसे नहीं पता था कि गुरु की चेतावनी थी कि बेटा ये लोग पागल हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस शहर में तेरे साथ। तो ही डिड नॉट नोटिस दैट टाइम, मगर अब वही होने जा रहा है। राजा ने बोला एक मोटे इंसान को ढूंढ के लाते हैं, एंड वो मोटा इंसान कोई नहीं, वो उसका शिष्य था गुरु का, जो वहाँ रह के इतना मोटा हो गया था बनानास राइस एंड व्हीट एंड घी खा खा के, कि ही वॉज द फिटेस्ट, ही वॉज द राइट पर्सन फॉर दैट थिंग, लाइक फॉर द स्टेक, टू फिट द स्टेक। तो राजा को अपनी मनचाही इंसान मिल गया था। व्हाट आई डन रॉन्ग, आई एम अ सन्यासी। जैसे उसको पकड़ते कहता मैंने क्या गलत किया भाई, मैं ना इनोसेंट पर्सन हूँ, आई डिड नथिंग, मैं कोई कसूरवार नहीं हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, दैट मे बी ट्रू, बट इट्स रॉयल डिग्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। ठीक है, वो सब ठीक है, मगर ये हमें ऑर्डर है कि हमें एक इंसान मोटा ढूंढ रहा है जो स्टेक को फिट कर सके। They sat and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's word. This is a city of fools. You don't know what they will do next. अब उसे अपने गुरु की बात याद आ रही है कि जब गुरु जी ने मुझे समझाया था कि ये पागलों की जगह है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है, मतलब कुछ भी। Shock, it could be a shock, it could be surprise. While he was waiting for that, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far, and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at one to save his disciple, who had got himself into such a cripple through love of food. तो उन्होंने अपने गुरुजी को याद किया, एंड दिव्य शक्ति थी गुरुजी पे जो भी थी, ही गॉट सम मैजिकल पावर्स कि वो अपने शिष्य को देख सकते थे, और उस अपने शिष्य को उन्होंने उनसे प्रे करते हुए देख लिया कि उसको उनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो गुरु इतने दिव्य शक्ति थी कि वो आगे का पीछे का फ्यूचर लाइक पास्ट एवरीथिंग ही हैज अ विजन, ही कैन वॉच एवरीथिंग। तो ही अराइव्ड एट वंस, वो आ चुके थे ये देख के डिसिप्लिन के, उनका शिष्य उनको याद कर रहा है और किसी विपदा में आ गया, किसी मुसीबत में फंस गया, जस्ट बिकॉज अपने खाने के लालच को लिए। As soon as he arrived, he scolded the discipline and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him. O wisest king, who is greater, the guru or the disciple? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me on the stake first, put my disciple to death after me. तो वो उसके कान में कुछ समझाता है उसे, एंड नेक्स्ट पार्ट समझाता है कि तुमको ऐसे क्या एक्ट करना है जिससे हम बच सकें। एंड द मोमेंट ही एक्सप्लेन इन हिज ईयर, वो राजा के पास जाता है और पूछता है कि कौन ज़्यादा महान है महाराज, मैं या मेरा चेला। तो महाराज जी कहते हैं ऑब्वियसली एक गुरु ज़्यादा महान होता है, तो फिर मेरा ज़्यादा हक बनता है मरने का, लाइक मैं हूँ जो पहले सूली पे चढ़ूँगा, मेरे शिष्य को नहीं। ओके, व्हेन द डिसिपल हर्ड this, he understood and began to clamor. Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. Now the disciple is acting according to the plan, जैसे उसे गुरु ने समझाया, तो वो लड़ना स्टार्ट करके नहीं गुरु जी आप नहीं जाओगे, मैं जाऊँगा, मैं मरूंगा पहले।
आप मुझे पहले पकड़ के लाए थे राजा जी, तो आप मुझे पहले मारोगे. The Guru and the discipline now got into a fight because about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the Guru, "Why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for this stake." कहता है गुरु जी आप क्यों मरना चाहते हो? हमने तो इस इंसान को इसलिए ढूंढा था क्योंकि ये बिल्कुल स्टेक के लिए फिट बैठ रहा है, बिल्कुल मोटा ताजा है और ये आराम से फिट आएगा. You shouldn't ask me such question. Put me to death first. Replied the Guru. कि सर आप मुझे ये सवाल नहीं पूछ सकते, मैं गुरु हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए. Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. कहता है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये चल क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक समझदार और एक ज्ञानी इंसान है, आप प्लीज मुझे समझाइए ये ऐसा क्यों हो रहा है. राजा ने बोला, Will you promise to put me to death if I tell you? Asked the Guru. The king gave him a solemn word. The Guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of God of justice." कहता हम पूरे दुनिया में घूम लिए, ठीक है, मगर उससे पहले गुरु कहता है कि अगर मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आपको ये कसम है कि मेरे बात बताते ही आपको मेरे को मतलब यू हैव टू पुट मी टू डेथ, ठीक है, मेरे को ऑर्डर दे दीजिएगा मेरे मरने का. तो वो कहता है ऐसा क्या है मेरे को बताओ. तो कहता है हमने पूरा शहर ढूंढा, मतलब पूरी दुनिया घूमी, मगर हमको कभी भी ऐसा मतलब शहर नहीं मिला. और जहाँ हम मरने जा रहे हैं, लाइक ये जो स्टेक है, ये दिस इज अ स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, मतलब यहाँ पूर्ण न्याय होगा. ये भगवान का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो भी मरेगा वो उसका भगवान जो है न्याय करेंगे. इट्स अ न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल नॉलेज. ये वे बहुत नया है और पहली बार है. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ancestral life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. तो उसने समझाया कि आज के दिन जो यहाँ मरेगा, जो पहले मरेगा वो तो नेक्स्ट किंग होगा इस शहर का, और जो मेरे जस्ट बाद मरेगा वो मिनिस्टर, जो उसका सेनापति कहलाएगा. द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we'll be reborn as king and minister again. तो दिमाग लगाया का किंग ने, बहुत देर सोचा, फिर उसने मिनिस्टर बुलाया, उसने एक्सिक्यूशन कर दिया पोस्टपोन कि आज ये नहीं हत्या होगी, आज अब ये अगले दिन होगी. और रात में उन्होंने अपने मिनिस्टर से जाके बात की. कहता है मैं नहीं चाहता कि ये जो राज सिंहासन है अगले जन्म में नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ किसी और के पास चले जाए, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता. इसलिए हम क्या करेंगे, हम उन दोनों की जगह खुद मरेंगे, ठीक है, जिससे कि हम अगले साल फिर से राजा और सेनापति बन के जन्म लें. सो ही टोल्ड द एक्सिक्यूशनर. इट वॉज अ वेरी फुलिश आइडिया बट इट वॉज गोइंग ऑन. वील सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट. व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकंड मैन. दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक. तो एक्सिक्यूशनर को ये ऑर्डर कर दिया जो पहला इंसान आएगा रात में उसे आपको मारना है, एंड जो दूसरा आएगा उसे भी. ये मेरा हुक्म है और आपको मानना पड़ेगा. That night the king and the minister went secretly to the prison, released the Guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. So actually that happened. वो गए रात में, उन्होंने गुरु और शिष्य को वहाँ से फ्री कर दिया, and actually वो अपनी उनकी जगह उन्होंने खुद ली. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. तो जब उनकी डेथ हो गई तो वो उनकी बॉडीज़ को जंगल में फेंक देते हैं, लाइक चील, कौए, द क्रोज एंड द वल्चर जो भी होते हैं खान लेते हैं उनको. बट जब उन्होंने फेंका तो गाँव वालों ने पहचान लिया कि ये तो हमारे किंग हैं, ये तो हमारे राजा और ये हमारे सेनापति है. तो द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन. तो वो लोग सब अजीब कन्फ्यूजन में थी कि यार ये कैसे मर गए. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a minister, said someone. Other agreed.
दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। तो गांव वालों ने बहुत डिस्कशन किया और उन्हें फाइनली दो नाम अच्छे मिले, गुरु एंड द डिसिपल। एंड द मोमेंट दे फाउंड दैट ये लोग सबसे ज़्यादा एलिजिबल हैं इस राजगद्दी के लिए, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप इस राज सिंहासन को संभालिए, इस शहर को बचाइए। इट डिडंट टेक मेनी आर्गुमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द ग्रुप। अपनी बात मनवाने के लिए जो शिष्य था उसमें टाइम लगा, बिकॉज वो तो ऑलरेडी बहुत खुश था इस शहर में, खाने को पीने को सब मिल रहा था। मगर हाँ, जो गुरु थे उनको थोड़ा टाइम लगा समझाने में और कन्विंस करने में। They finally agreed to the rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. Finally वो एग्री हुए, मगर उन्होंने ये सोच के बोला उनको कि हाँ हम बनेंगे, मगर यहाँ के जितने भी लॉज हैं रूल्स हैं हम चेंज करेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। और फिर उस दिन से रात रात थी और दिन दिन की तरह था। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डू डू। It became like any other place and you cannot get anything। मतलब अब थोड़ा महंगाई थी एंड चीज़ों की कीमत जो एक्चुअली होनी चाहिए, लाइक गोल्ड शुड बी एक्चुअली वेट, उसका वेटेज गोल्ड की तरह ही लेना चाहिए, और जो नॉर्मल वीट है उसको वीट की तरह ही लेना चाहिए। तो उसकी भी क्या है डिफ्रेंशिएट कर दिया, चीज़ों की वैल्यू पता चली। रात रात हो गई, दिन दिन हुआ, वापस से लोग नॉर्मली काम करने लगे जैसे एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है। एंड इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। जैसे बाकी की दुनिया है वैसे ही वो जो किंगडम ऑफ फूल्स था वो भी बिल्कुल वैसे ही हो गया। लाइक इट वॉज नो मोर अ किंगडम ऑफ फूल्स, अब वो थोड़ा ठीक हो गया था। इट वॉज अ बेटर सिटी नाउ। सो इट वॉज ऑल अबाउट अ किंगडम ऑफ फूल। Thank you so much. I hope you have understood the video. Thank you again for watching the video.